Good morning, students. Today we are going to discuss exponents and powers. Firstly, we shall discuss some important points. Repeated multiplication can be expressed as exponential form. Suppose a be an irrational number, then a can be written as a raised to power 1. A into a is a raised to power 2. A into a is a raised to power 3. In the same way, a raised to power n is equal to a into a and so on to n times. It means a is multiplied itself n times, where n is a natural number. Here, a raised to power n is the exponential form, in which a is called the base and n is called the exponent or power or index. It means repeated multiplication को हम एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. सपोज मेरे पास एक नंबर है. ठीक है. तो e रेज़ पावर n यहाँ पे है, मतलब a को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a के साथ ही, है ना. तो जहाँ पे जो e रेज़ पावर n है, ये हम नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है. ठीक है. नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है. ठीक है. और इस फॉर्म में जो a है, a बेस है, ये बेस कहलाता है. ठीक है. और n को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स. ओके. हाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. हम एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सपोज 81. It can be written as 3 into 3 into 3 into 3. It means 3 is multiplied itself 4 times. It means it is 3 raised to power 4. Okay. It can be read as 3 raised to the power 4. In the same way, 100 can be written as 2 into 2 into 5 into 5. It means 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2. Okay. In the same way, we can write 21 as 3 raised to power 1 into 7 raised to power 1. Okay. मतलब 81 जन्म जैसे हम लिखा हुआ है, तो 81 की बेसिकली मैंने क्या लिखी है यहाँ पे? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है. ठीक है. तो कभी बार क्या होता है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नंबर की कभी बार बहुत लेंथी बन जाती है, उसकी मतलब काफ़ी बड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है. तो उसके लिए हमने क्या करा, एक न्यू फॉर्म सीख रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. तो उसको हम एक मतलब छोटी से उसको हम मतलब छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम एक बड़े नंबर को भी यूजिंग एक्सपोनेंशियल पावर्स. ओके. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लेट a and m be any two rational numbers, then a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ठीक है. मतलब मैं कोई भी दो नंबर्स लेता हूँ, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है. अगर उनके बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है. एग्जांपल्स आर 2 raised to power 3 into 2 raised to power 2. That is 2 raised to power 3 can be written as 2 into 2 into 2, and 2 raised to power 2 can be written as 2 into 2. It means this expression can be written as 2 raised to power 5. Okay, as 2 is multiplied itself 5 times. It means 2 raised to power 3 into 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power 5. ठीक है. It means 2 raised to power 3 into 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power 3 plus 2. Got it? We can say that a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Okay, students. Next is a raised to power m divided by a raised to power n is a raised to power m minus n. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 5 divided by 2 raised to power 2. ठीक है. 2 raised to power 5 remain as it is. Okay. And converting the division into multiplication, we shall write the reciprocal of 2 raised to power 2, which is 1 upon 2 raised to power 2. Okay. And 2 raised to power 5 can be written as 2 into 2 into 2 into 2, and 2 raised to power 2 can be written as 2 into 2. This 2 and this 2 got cancelled here.
एंड वी आर लेफ्ट हियर विद 2 रेज़्ड पावर 3. ठीक है, इट मीन्स 2 रेज़्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 3. मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपोनेंट्स. इट मीन्स a raised power m divided by a raised power n is equal to a raised power m minus n. मतलब अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हों, उनके बेसिस सेम है, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं और पावर्स को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज a raised power m होल पावर n इज a raised power mn. मतलब अगर देखो एक नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसकी एक और होल पावर है, तो जो पावर्स होती हैं हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज़्ड पावर 2 होल रेज़्ड पावर 3. सो 3 रेज़्ड पावर 2 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 होल रेज़्ड पावर 3. ठीक है, अगेन एक्चुअली 3 इंटू 3 होल रेज़्ड पावर 3 है, सो आई शैल मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 3 टाइम्स. सो इट इज 3 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3. इट मीन्स 3 is multiplied 6 times, that is 3 raised to power 6. It means 3 raised to power 2 whole raised to power 3 is equal to 3 raised to power 6. ठीक है, 6 means 3 raised to power 2 into 3. Okay, it means a raised to power m whole power n is equal to a raised to power mn. Okay, next is a raised to power m into b raised to power n, sorry m equals to a into b whole power m. देखो मतलब अगर बेसिस अलग हो पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है, पावर सेम रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 रेज़्ड पावर 3 इंटू 5 रेज़्ड पावर 3. 2 रेज़्ड पावर 3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी एंड 5 रेज़्ड पावर 3 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5. इट मीन्स we can write this expression as 2 into 5 into 2 into 5 into 5. It means 10 into 10 into 10, that is 10 raised to power 3. It means 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3 is equal to 10 raised to power 3. ठीक है, मतलब बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है अगर पावर सेम हो तो. ठीक है, और पावर सेम रहेगी. ओके, इस तरीके से दैट इज a raised to power m into b raised to power m is equal to a into b whole power m. Next is a raised to power m divided by b raised to power n is equal to a upon b whole power m. ठीक है, अब देखो सेम अगर हम दो एक्सपोनेंशियल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पावर सेम है, बेसिस अलग है, तो बेसिस को डिवाइड कर देना है, पावर सेम रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 रेज़्ड पावर 3 अपॉन 5 रेज़्ड पावर 3. सो आई कैन राइट 2 रेज़्ड पावर 3 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 रेज़्ड पावर 3 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5. Okay, I can write this expression as 2 upon 5 into 2 upon 5 into 2 upon 5. That is 2 upon 5 raised to power 3. ठीक है, it means 2 raised to power 3 upon 5 raised to power 3 is equal to 2 upon 5 raised to power 3. ठीक है, that is a raised to power m upon b raised to power m is equal to a upon b whole power m. ठीक है, next is anything raised to power 0 is 1. Suppose 2 raised to power 0, okay, it can be written as 2 raised to power 2 minus 2, है ना, 2 minus 2. Applying the second law, we can write 2 raised to power 2 minus 2 as 2 raised to power 2 upon 2 raised to power 2. So these are same numbers, they got cancelled here and answer is 1. So anything raised to power 0 is 1. ठीक है, next is a upon b whole power minus n is equal to b upon a whole power n. ठीक है, where a and b are non-zero integers. ओके, मतलब अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ, उसकी नेगेटिव पावर आ रही हो, तो उसकी नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्या करना है, हमने उसके मतलब उस एक्सप्रेशन को या उस रैशनल नंबर को हमने उसका रेसिप्रोकल लिख लेना है. फॉर एग्जांपल a अपॉन b होल रेज़्ड टू पावर माइनस n इज b अपॉन a होल रेज़्ड टू पावर n. ठीक है, इन द सेम वे a रेज़्ड टू पावर माइनस n इज 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर n. ठीक है, इट मीन्स a इज डिवाइडेड बाय, we are dividing by a n times. In the same way, a raised to power minus 1 is equal to 1 upon a.
नेक्स्ट इज फॉर a इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब अगर a की वैल्यू -1 है, -1 रेज़्ड टू पावर 0, -1 रेज़्ड टू पावर 2, -1 रेज़्ड टू पावर 4, सो ऑन टू -1 रेज़्ड टू पावर p इक्वल टू 1। मतलब जितने भी नेगेटिव मतलब जो -1 की जितने भी पावर्स हैं, अगर वो पावर इवन हो तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कब आएगा? अगर किसी भी एक्चुअली -1 नहीं, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट इज -1 रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर 5 एंड सो ऑन टू -1 रेज़्ड टू पावर p इज इक्वल टू -1 फॉर सम ऑड इंटीजर p। मतलब -1 की जितनी भी ऑड पावर्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनको एक्सपैंड करूँ आंसर क्या आएगा? -1, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a वी हैव a रेज़्ड टू पावर -n इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर n। मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है तो उसको उसकी जो फॉर्म है e रेज़्ड टू पावर -n, मैं उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर n। इट मीन्स a रेज़्ड टू पावर -n इंटू a रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1। मतलब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब आता है? मतलब अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर 1 आता है, इट मीन्स ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो a रेज़्ड टू पावर -n इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। a रेज़्ड टू पावर -n क्या है? a रेज़्ड टू पावर n का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो a रेज़्ड टू पावर n है वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a रेज़्ड टू पावर -n का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 रेज़्ड टू पावर -3 इज द multiplicative inverse of 3 raised to power 3, as 3 raised to power -3 into 3 raised to power 3 is equal to 3 raised to power -3 plus 3 which is equal to 3 raised to power 0 which is 1, ठीक है। मतलब मैं 3 raised to power -3 को 3 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आंसर 1 आ रहा है। इट मीन्स ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट e raised to power n and e raised to power m be any two numbers in exponential form। सपोज करते हैं a raised to power n and e raised to power m दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन a raised to power n is equal to a raised to power m। देखो a raised to power n इक्वल होगा a raised to power m के if and only if n is equal to m, ठीक है। मतलब अगर दो एक्सपोनेंशियल नंबर सेम आ रहे हैं, उनके बेसिस सेम हैं, तो पावर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है इसको। और नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ओके, आल्सो वी कैन एक्सपेंड अ नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। कंसीडर टू नंबर्स, ठीक है। 1025.63 can be written as 1 into 10 raised to power 3 plus 0 into 10 raised to power 2 plus 2 into 10 raised to power 1 plus 5 into 10 raised to power 0 plus 6 into 10 raised to power -1 plus 3 into 10 raised to power -2, ठीक है। In the same way here we can omit the term containing 0 here, okay, and in the same way we can write 1256.249 in its exponential form, ठीक है। So we can say that 10 raised to power 0 means ones, 10 raised to power 1 means tens, 10 raised to power 2 means hundreds, 10 raised to power 3 means thousands. In the same way 10 raised to power -1 is 10th, ठीक है। 10 raised to power -2 means 100th, 10 raised to power -3 means 1000th, ठीक है। ओके, this is the expanded form and we can express any number in its expanded form using exponents, ठीक है। बस तुम्हें ये जो यहाँ पे जो टेबल बनाया है, ठीक है, जहाँ जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, इसको याद रखना है, ठीक है। तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कंसीडर टू नंबर्स, ओके, जो दो नंबर लेते हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कभी बार क्या होता है, एक नंबर होता है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, है ना,
ठीक है, या फिर वेट आवर्स हो गई, तो ये नंबर काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म मैंने लिखी है, यहाँ पे ये यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, देखो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5.64 एक पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो 10 रेज़्ड पावर पार्ट है ना, इससे जो पहला पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक इंटीग्रल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, मीन जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। उसमें हमें एक ही डिजिट चाहिए, ठीक है, उसमें एक ही डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0.000000564, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है तो मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लाना पड़ेगा, 5.64, मतलब 5.64 ऐसे लाना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। तो किससे करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे 3 और 3 6 to 8 डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब मुझे 10 रेज़्ड पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस नंबर को 10 रेज़्ड पावर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 5.64। लेकिन अब अगर मैं इसको किसी नंबर को 10 रेज़्ड पावर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको मुझे 10 रेज़्ड पावर 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 10 रेज़्ड पावर 8 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 5.64 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 8, ठीक है, ओके, सॉरी 5.64 बनेगा। और जो 10 रेज़्ड पावर 8 है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो वो 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और याद रखना है, अगर मुझे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 रेज़्ड पावर किसी नंबर से, मतलब 10,000 लाख ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो डिपेंड करता है आपने कितने डिजिट को शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे 8 डिजिट शिफ्ट करना था तो मैंने 10 रेज़्ड पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इन द सेम पे जो दूसरा नंबर है, जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर है 15240000, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पहले तो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आना मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ 4 और 3 7 डिजिट्स आ रहे हैं, तो मुझे इसको 10 रेज़्ड पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 10 रेज़्ड पावर 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1.524, और जो 10 रेज़्ड पावर 7 है वो वैसे रहा, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करा हुआ है, हाई क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम देखो ना भाई, अगर एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर मतलब हम उसको कॉपी पे लिख नहीं पाएंगे, जैसे 1 के आगे 100 ज़ीरोस हैं, तो बच्चे कहाँ लिखते रहेंगे, उसको सीधे ऐसे लिख लो 10 रेज़्ड पावर 100, ठीक है, उसको सीधे ऐसे लिख लो, बड़े आसानी से हो जाएगा वो। नेक्स्ट इज होम असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स, ओके। So kindly pause the video and note down the questions and solve them on your own, okay. That's all about today's learning. Thank you, students.